Yali Madad, good afternoon, everyone. Welcome to our fourth webinar of Digitalize Yourself. My name is Sonal Popatia, and I am a member of Women's Activity Portfolio. Thank you for taking the time to be here today. So, as we all know that this is our fourth webinar of Digitalize Yourself, we have learned many things in our past three webinars. In our first webinar, we have learned about Canva Mystery, learning about creating business logo, book cover, posters, and many more. In second webinar, we learned how to create professional video without watermark and also about Zoom feature. In third webinar, we learned about Paytm and technical aspects of Google, such as Google Store, Google Translate, Google Drive, and how to use those for our benefits. And today, in our fourth webinar, we will learn how to compress video without affecting video quality, converting video format. In addition, we will also learn about the uses of Padlet and how to write an email. Without taking more time, I would like to welcome our today's panelist, Dr. Steven Patel. He has done his BCA, MSc IT, PhD in Computer Science, UGC NET. He is the head department of Computer Science and Information Technology at Atmia University. Since 16 years, he has also conducted more than 1,000 workshops and seminars on different topics of CS and value education. We would like to officially welcome you, sir, and look forward to being inspired and learn from you. Thank you very much, Sonal. This is a pleasure talking with you people today. So first of all, Ya Ali Madad, and very good afternoon to you, and from my side in India, it's good evening. So as Sonal said, जो कि अभी हमारी बात हुई, because I am instructed to deliver the whole session into Hindi. तो मतलब हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे. माफ करना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करने की आज मैं आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ. ठीक है. Anyways, so before I start the three things today we are going to learn, उसमें से पहली चीज है वो है Padlet. दूसरा, जीमेल या फिर कोई भी मेल होते हैं, जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है, जो मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हम किसी ना किसी मेल सर्विस का यूज करते हैं अपने रूटीन लाइफ में. लेकिन होता क्या है कि जितने भी ऑप्शंस हमको मिलते हैं, उनमें से काफी ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, और ड्यू टू दैट वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस ऑप्शंस. सो आज थोड़ी उस पर भी हम बात करेंगे. And the third thing is compression. कंप्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब बड़ी साइज की कोई फाइल हो और हमें ईमेल से या फिर शेयरिंग ऑफ फाइल से, मतलब कि उस वे से हमको किसी के साथ शेयर करना होता है. ठीक है. तो एक कंप्रेशन भी है, और काफी बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसी फाइल्स हमारे पास आती है जो कि हमारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में ओपन नहीं हो पाती है, या फिर उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज रहती है किसी ना किसी चीज को लेके. तो वो भी हम आज देखेंगे. बहुत आसान से तरीके हैं, बहुत फास्टेस्ट वे में हम, मतलब कि 5-10 सेकंड में भी ये कर सकते हैं. बहुत इजी है, और मोरओवर ये सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलती है. दीज ऑल आर द शेयरवेयर्स, मतलब कि उसकी कोई कॉस्ट हमें पे नहीं करनी होती है. तो जो भी हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज है, उनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं. And before I commence, before I start my presentation, I just would like to thank the women team who are selflessly working for the betterment of the society, specifically women are concerned. So सुनीता जी का भी इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. सोनल जी के साथ तो एक दो बार मेरी बात हुई, बट बहुत ही छोटी एज में बहुत अच्छे तरह से किसी प्रोग्राम को हैंडल करना, टू बी ए पैनलिस्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट बहुत आसानी के साथ, बहुत सहज अवस्था में वो कर पा रही है. वो भी मौला की देन है, उनके हमारे पर उनकी रहमत है. So let us start with this. I'm going to share my presentation to you all people, and we are just going to start.
what is Padlet, right? मुझे आज पिनाली ने सिखाया है कि जैसे हम ग्रीट करते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वैसे हम यहाँ या अली मदद बोलते हैं। तो या अली मदद के साथ, मौला के आशीर्वाद के साथ, उसकी रहमत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत आपकी टर्मिनोलॉजीज मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जो भाव है वो आप आसानी से पकड़ पाओगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन इज डिजिटलाइज योरसेल्फ। देखिए, हम सब जानते हैं कि 10, 15, 20 साल पहले जो भी डीलिंग होते थे वो ऑन पेपर होते थे। जो भी कम्युनिकेशन होता था वो फिजिकल कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जब से मोबाइल आया है, उसमें भी मोबाइल में स्मार्टफोन जब से आ गए हैं, तब से पूरा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गया है। और ऐसे एरा में अगर हम अपने आप को ओल्ड रखेंगे, फिजिकल स्टफ से जुड़े रखेंगे और कन्वर्ट होके मतलब कि डाइवर्ट होके अगर हम डिजिटलाइज वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये आज के वर्कशॉप का ये हेतु होगा। शायद आपकी जो भी मतलब कमेंटिंग है उनके सिलेक्शन के पीछे। So we will just try to understand how to make things digitalized, right? So the first thing we are going to see is a Padlet. देखिए, Padlet के बारे में बहुत तो मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, क्योंकि इट इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। और न्यू है उससे भी ज्यादा एक इट्स अ काइंड ऑफ चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम लोग वर्ल्ड में अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका रेशियो है बढ़ रहा है। मैं परसों ही देख रहा था कि एक साल पहले कितने मतलब पैडलेट्स को लेकर कितने लोग अवेयर थे। बहुत कम लोग थे, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो पैडलेट से वो डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैडलेट बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी बच्चा या फिर बड़ा या फिर एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर अपने जो व्यूज है, या फिर आज फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ये आया कि आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर माय थिंग्स एंड मुझे मेरे दोस्तों के साथ कुछ शेयर करना है जो आज मैंने सीखा है, और मुझे उनके कमेंट्स चाहिए, मुझे उनके फीडबैक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप अगर यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में तो हमको फिजिकली क्या करना होगा कि जो आज मैंने सीखा है वो 10, 15, 20 लोगों को शेयर करना होगा इंडिविजुअली। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और सबके जो फीडबैक आएंगे वो इंडिविजुअल आएंगे, या फिर आई जस्ट नीड टू मेक अ ग्रुप एंड इट विल बी जंबल काइंड ऑफ थिंग। मजा नहीं आएगा देखने का या फिर उसको समझने का। लेकिन पैडलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो हमारे पूरे ग्रुप को, मतलब कि हमारा जो पूरा सर्कल है उसमें कोई भी हो सकता है। बच्चे भी हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम भी हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, राइट? और या फिर कोई भी हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है अपने ग्रुप के साथ, क्योंकि ये पूरा ग्रुप एक्टिविटी है, ये सोलो एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर हम जो भी करेंगे वो हम अपने जो हमारे क्लोज वन है या फिर हम ग्लोबली इसको शेयर कर पाएंगे, राइट? सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। हम यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग डिफरेंट फेजेस में उसको डिवाइड किया है। एक के बाद एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पैडलेट काम करता है। सबसे पहले तो पैडलेट क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं, जिन्होंने पैडलेट अब तक देखा नहीं है उनको अभी तक कंफ्यूजन होगा कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन यू डोंट बॉदर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पैडलेट देखेंगे किस तरह से ये काम करता है, वैसे वैसे वो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाएगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन आपको दिखाया है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 अलग अलग प्रकार के पैडलेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला है वॉल। जैसे कि हमारा फेसबुक वॉल होता है, हम क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, हम क्या करते हैं अपनी फोटोग्राफ डालते हैं या फिर अपना कोई थॉट डालते हैं या फिर अपनी कोई मोमेंट डालते हैं। व्हाट पीपल डू, वो क्या करते हैं अपना फीडबैक्स देते हैं, अपना जो भी व्यू है वो रखते हैं अपने सामने, या फिर लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, अपना जो थॉट है उसको हम अपनी वॉल पे डिजाइन करेंगे। वो
क्रिएट करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, देन सो दैट दे कैन सी अवर गोल। जैसे आज मैंने वैक्सीन लिया, ठीक है, आज मैंने लिया ही है, सही में लिया है, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। कोविशील्ड वैक्सीन आज मैंने लिया, बिकॉज वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, बीइंग प्रोफेसर, गवर्नमेंट इज अलाउइंग अस टू टेक वैक्सीन्स अंडर 45 इयर्स। तो आज करीबन 5 बजे के आसपास मैंने वैक्सीन लिया। तो मैं अपनी एक फोटोग्राफ है उसको मैं डालूंगा, उस लिखूंगा कोविशील्ड, आई हैव टेकन कोविशील्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी कोविड प्रूफ, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है। अब दोस्त तो हर प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ मिस्टीरियस भी होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने अपने जो भी कमेंट्स है, अच्छा तूने ले लिया, कैसा फील हो रहा है ना, वैसे भी बोलते हैं, कभी ये भी बोलते हैं, देखना भैया उसका साइड इफेक्ट बहुत आता है, पूरी रात जगाएगा। तो मतलब दिस काइंड ऑफ व्यूज, कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नसीबदार हो, आपको आज ये वैक्सीन लेने को मिल गया। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को लेके हम शेयर करते हैं या फिर हम परफॉर्म करते हैं, वो हम पैडलेट में करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज अवर वॉल। देखिए यहाँ पर वॉल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, this is a presentation and I'm not going to teach you anything on the base of the presentation, है ना। we will see live किस तरह से पैडलेट बनता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्यों होता है कि पूरा एक बार थोरोली स्टडी करने के बाद अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है या फिर कल फिर से मुझे रिवाइज करना है और प्रैक्टिकली व्हेन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स ऑन माय कंप्यूटर, तब जाके जब भी जहीं कहाँ भी हम अटकते हैं तो ये प्रेजेंटेशन विल हेल्प अस अ लॉट टू मूव फर्दर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने वॉल समझा, यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है वॉल का, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 पोस्ट डाली है किसी ने, ठीक है। किसी ने मॉलिक्यूल के बारे में, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में डाला है, या फिर किसी ने ट्यूसडे नॉट के लिए पूछा है, या यहाँ पर कोई मतलब वाई 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 उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर किसी रीमा ने डाल दिया है। तो यहाँ पर प्लीज पोस्ट अ पिक्चर ऑफ समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये टीचर है, टीचर ने हमको एक असाइनमेंट दिया है और उस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 1 में जो भी सीखा है वो स्टूडेंट्स जो भी समझ पाए वो अपने हिसाब से यहाँ पर डाल रहे हैं, है ना। तो कोई मीनिंगफुल भी होता है, कोई मीनिंगलेस भी होता है, जैसे यहाँ पर वाई 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 उसका कोई मतलब होता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर आरएनए डीएनए का डिजाइन दिया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वुड लाइक टू शो यू द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द पैडलेट इज एंड वी विल सी। देखिए पैडलेट ओपन करने के लिए क्या होता है, padlet.com ब्राउजर में जाके सिर्फ हमको लिखना होता है padlet.com। 3 ऑप्शंस हमको मिलेंगे, या तो हम अपना अकाउंट क्रिएट करें, या फिर हम जीमेल से लॉगिन कर पाए, या फिर हम फेसबुक वगैरह से लॉगिन कर पाए। जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपके पास मतलब अकाउंट अवेलेबल है, उस अकाउंट को यूज करके हम उसमें लॉगिन हो सकते हैं, राइट। पैडलेट में 2 वर्जन दिए गए हैं, एक फ्री है और एक पेड है, ठीक है। लेकिन जितना हमारा यूज है उतने यूज के लिए तो फ्री काफी है, और अगर उससे ज्यादा भी कोई टीचर है, कोई अपने स्टूडेंट्स को यही प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जाना चाहता है, देन दैट इज वेरी इजी, और वो इतना मतलब कॉस्टली भी नहीं है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से पैडलेट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन होते हैं, मैं इतना होप कर रहा हूँ कि आप जीमेल से एटलीस्ट लॉगिन तो हो जाओगे। आपका सिर्फ जो एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है ना, वही आपको डालना है और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली दे विल लॉग इन टू दी डैशबोर्ड। दिस इज अ डैशबोर्ड, ठीक है। पैडलेट का ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, हम एक एक करके ये ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हाई स्तवन रिमेंबर टू ईट योर वेजेस, बहुत ही फंकी लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, तो उनको ये अच्छा लगता है ना। जैसे कोई अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है, तो हमारे टाइम पे क्या था, मतलब कि कोई अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा हो तो उसके कोई एक्सप्रेशंस अलग रहते थे, लेकिन आज के एक्सप्रेशंस आप देखो तो वो का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन वो भी बोलते हैं वो, लाइक इट्स वो काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज अ टोटल डिफरेंट जनरेशन, और सबको अपनी अपनी
तरीके से उसको सेलिब्रेट करने में मजा आता है, अपने तरीके से काम करने में मजा आता है, और अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके कुछ अच्छा डिजाइन करने में उसको मजा आता है। इसीलिए ये पैडलेट हम सीखने की आज कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि वॉल, देखिए यहाँ पर मैं पैडलेट में करूंगा तो जो ऑप्शंस मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में दिखाए थे वही 8 ऑप्शंस हमको यहाँ देखने मिलते हैं। सबसे पहला है वॉल, तो हम यहाँ पर वॉल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं वॉल पे क्रिएट करता हूं दे विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली मेकिंग द पैडलेट। देखिए अभी यहाँ पर एक बैकग्राउंड में अच्छा सा एक इमेज है और उस पे हमको पैडलेट क्रिएट करना है। किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन में आप देख पाओगे, जैसे ही पैडलेट क्रिएट करते हैं यहाँ पर आपको मॉडिफाई करने के लिए, पैडलेट जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टाइटल, तो यहाँ पर माई स्मार्ट पैडलेट से हम करेंगे माई फर्स्ट पैडलेट। ठीक है, ऐसा कुछ टाइटल हम रखते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मेड विद अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, उसको चेंज कर दिए, डिफॉल्ट देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसको चेंज करके हम क्या करेंगे, वी आर लर्निंग पैडलेट्स। ठीक है, वी आर लर्निंग पैडलेट, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये टाइटल हो गया। अब यहाँ पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज देयर इज नो आइकन। Now, at this place, if you would like to place any smiley as an icon, then we have options here. देखिए यहाँ पर हम आइकन में जाएंगे, तो अगर हमको इनमें से कोई भी आइकन हमको रखना है, ठीक है, तो हमको सिलेक्ट करना है, फिर बैक जाना है और नेक्स्ट करना है। लेकिन हम नेक्स्ट करें उससे पहले थोड़े ऑप्शंस और हम देख लें। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक ऑप्शन दिया गया है, यूनिक लिंक टू योर पैडलेट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये हमको क्या करना होता है, ये सिलेक्ट करके हमको, या we cannot see your live demo, whatever you are showing it. आई थिंक am I not visible? We can just see your screen. Okay, you would like to see me? No, आपकी वो नहीं देख रही है, जो आप डेमो दिखा रहे हो ना अभी लाइव, जो भी लाइव नहीं दिख रहा है। सिर्फ आपका जो आपने स्क्रीन शेयर में जो फर्स्ट वो एग्जांपल दिया था ना वही दिख रहा है। Oh yes, Live we can't got see it, that. got it. Okay. Now I think it is visible. Yes. Yes. I'm so sorry and thank you very much for making me aware of that because I had only shared the presentation script. Okay, fine. तो थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे आप जीमेल से लॉगिन होगे तो जीमेल से लॉगिन होते ही आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। उस डैशबोर्ड में थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत इजी ऑप्शंस है, सबके समझ में आएंगे, सबके समझ में धीरे धीरे। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक अ पैडलेट, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मेक अ पैडलेट पे क्लिक करते हैं तो जो मैंने स्लाइड में दिखाया था ये 8 ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। उनमें से हमने सबसे पहले वॉल सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। ठीक है, दिस इज वॉल और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पूरा एक वॉल यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, वो हर बार नई डिजाइन देगा बैकग्राउंड में, so nothing to worry in that case and we have that options कि हम अपने हिसाब से कोई डिजाइन बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो वो हम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैडलेट दिख रहा है, अभी पैडलेट में कुछ नहीं है। माई फियरलेस पैडलेट, जैसे कि मैंने पैडलेट का नाम रखा था माई फर्स्ट पैडलेट, राइट। उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने ये लिखा था लर्निंग पैडलेट। ठीक है, ओके फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो ये मेरा कर्सर आपको अगर दिख रहा है तो माई फर्स्ट पैडलेट ये बैनर है, इसका टाइटल है, तो उसके टाइटल के आगे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। इफ वी वुड लाइक टू प्लेस एन आइकन, तो हम आइकन में जाएंगे, बहुत सारे स्माइलीज यहाँ पर है, उनमें से कोई एक स्माइली हम लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। कोई भी, बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखिए व्हाट्सएप में जो हमको सब मिलते हैं वो सभी ऑप्शंस यहाँ पर है, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो या फिर सिग्नल हो या कुछ भी हो, ये सब ऑप्शंस यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। जो भी हम रखना चाहे हम रख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी टीचर का हम यहाँ पर रखेंगे और वी नीड टू गो बैक। देखिए यहाँ पर कोई बटन हमको नहीं दिया गया,
अगर आपको कोई अपना आइकन रखना है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ है, जैसे कि आपका कोई लोगो है, वो अगर आपको रखना है तो यहाँ से ऐड योर ओन आइकन करके हम उसको ऐड करके वो सिलेक्ट करके यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक टीचर का आइकन रखा है। हम बैक जाएंगे, नीचे आएंगे। देखिए मैं यहाँ तक पहुंचा था, यही से फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये जो लिंक यहाँ पर दी गई है उसको यूनिक लिंक बोलते हैं अपने पेडलेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम किसी के साथ अपना पेडलेट शेयर करना चाहेंगे तो ये चीज हमको चाहिए रहेगी, बिकॉज यूजिंग दिस लिंक पीपल कैन कनेक्ट टू अवर Padlets and they can see or rather review our Padlets। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपीयरेंस दिया गया है। वॉलपेपर अभी ग्रीन है, इसमें सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट रखना हो, टेक्सचर्स या फिर पैटर्न रखने हो, या फिर कोई पिक्चर हमको सिलेक्ट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। जैसे इससे पहले की स्लाइड, मतलब पहला का जो पैडलेट था उसमें ये बाय डिफॉल्ट आया था, चीयर्स द न्यू ईयर। अब उसको चेंज करके हम क्या करेंगे, सनसेट रख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सनसेट सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सनसेट का ये पूरा वॉल यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे बैक जाना है, अगेन बैक जाना है, और फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है, क्योंकि कुछ हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो फॉन्ट स्टाइल हमको अगर जो पसंद है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर स्कीम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग एट्रीब्यूट के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेडलेट क्या है, कैसे काम करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट दे देता हूं। ये मेरे नेक्स्ट देने के साथ स्टार्ट पोस्टिंग ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन दिखा रहा है, दिख रहा है आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे प्लस का साइन दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करो या फिर पूरे वॉल में कहीं भी आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, नहीं हम रखेंगे असाइनमेंट 1, राइट। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डियर स्टूडेंट्स प्लीज शेयर योर फीडबैक फॉर टुडेज सेशन। ठीक है, ऐसा मैंने रख दिया। ये ठीक हो गया। अब मैं टीचर हूं, मैं ये स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना चाहता हूं, तो मैंने इस तरह से एक असाइनमेंट जैसा एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया। उसको पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोस्ट बोलते हैं। देखिए पोस्ट में अब मुझे कुछ और अट्रैक्टिव बनाना है, तो क्या करूंगा, ये जो 3 डॉट्स यहाँ पर दिए गए हैं उस पर मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड। कोई फाइल आपको अपलोड करनी है। अगर आपने जो पूरा सेशन आज जिस पे कोई टीचर ने लिया है, जिस पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो उसका मटेरियल है कुछ और जिसमें से उन्होंने पढ़ाया था, वो अगर शेयर करना है देन वी कैन डू यूजिंग अपलोड ऑप्शन। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी ब्लॉग पे है या फिर किसी वेबसाइट पे है, तो उसका लिंक डायरेक्टली हम दे सकते हैं, या फिर गूगल ऑप्शन दे देंगे तो वहीं से कोई बंदा सर्च कर सकता है। हमको अगर आपके पास लैपटॉप है, कैमरा है, या फिर आप फोन में एक्सेस कर रहे हो पेडलेट, तो लाइव फोटो आपको रखना है तो वो भी हो सकता है। फिल्म अगर कुछ शेयर करना है तो वो भी हो सकता है। ऑडियो मैसेज देना है, किस तरह से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ एक ऑडियो नोट हो वो रखना है तो हो सकता है। आपने अगर आज मतलब जो भी यहाँ पर किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो भी सिखाया है उनको, अगर वो रिकॉर्ड किया हुआ है, या फिर आप अभी जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसको आपको रिकॉर्ड करना है और उस पर डालना है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज है कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना होगा तो जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक टूल जिसको बोलते हैं हम, उसको प्लगइन बोलते हैं, वो प्लगइन आपको डालना पड़ेगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर हो, प्लगइन सब ब्राउजर्स के लिए अवेलेबल है। तो जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उस ब्राउजर के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक प्लगइन डालना होगा और उसको एक्टिवेट करना होगा, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस मिले कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए अभी पेडलेट को परमिशन दे। ठीक है, अगर आपको कुछ डूडल जैसा ड्रॉ करना हो, डूडल जो गूगल में
बेसिकली हर रोज बदलता है ना, गूगल का नाम जो लिखते हैं उसका पैटर्न हर रोज बदलता है, उसको डूडल बोलते हैं। तो मतलब उसका डूडल जैसा कुछ अपना क्रिएट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर कोई लोकेशन डालना हो, अगर कोई फिजिकल एरिया के बारे में सर्च कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है, जैसे कि आज मैं पिकनिक पे लेके गया था बच्चों को, और पिकनिक के एक्सपीरियंस के बारे में जैसे मैं पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ वॉज योर डे चैम्प्स, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन डाला है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज शेयर योर फनी मोमेंट्स ऑफ द डे, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लेस डाल देंगे। तो प्लेस कैसे हमको मिलेगी? सैटेलाइट चाहिए, टेरेन चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, रोड चाहिए। देखिए यहाँ पर सब ऑप्शंस अवेलेबल है। आज हम कहाँ घूमने गए थे, तो हम कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम घूमने गए थे, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और हम सेव करेंगे, तो उसका आइकन यहाँ पर आ जाएगा, उसका एक फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, पूरा मैप ही उधर आ जाएगा। तो उस तरह से हम मैप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, देखिए अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी simply what I am going to do is drawing a doodle। जैसे डूडल पे क्लिक करते हैं ना, ड्रॉ पे, वैसे आपको एक पेन मिलता है, ये प्लस है ना, वो पेन है, और थोड़े बहुत कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, ये मैंने माउस से लिखा है हेलो। जैसे मैं सेव करूंगा, ये ड्राइंग सेव होगा, और वहां पर एक फोटो फ्रेम जैसा एक बॉक्स बनेगा, और उस बॉक्स में यहाँ पर हमको हेलो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उसको चेंज करके कोई फोटोग्राफ डालना है तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्लोज करके यहाँ से जैसे मैं स्नैप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे फोटो बूथ मिलेगा, यहाँ पर कैमरा स्टार्ट होगा। लेकिन कैमरा अभी बिजी है क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं, तो मतलब उसमें से हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करना चाहूंगा, कुछ फाइल वगैरह डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पिक फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। वहां से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक फाइल को ओपन करते हैं, तो जो फाइल हमने सिलेक्ट की है वो फाइल हमको एज ए फोटोग्राफ वहां पर दिखेगी। ये तो मैंने फोटो सिलेक्ट किया था। अगर आप कोई फाइल सिलेक्ट करो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी फाइल, वो जो भी आप सिलेक्ट करोगे आपको दिखेगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गई पोस्ट। अभी जिसके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि मैं आपको लाइव अभी किसी के साथ कनेक्ट करके नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ सोलो सेशन, राइट। नोबडी इज कनेक्टेड विथ मी एट दिस मोमेंट इन दिस Padlet। तो मतलब अभी ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दे कैन गिव द कमेंट ऑन दैट। अभी क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, देखेंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सर ऑसम, ठीक है। फिर अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, मी एंड महेश हैव एंजॉयड अ लॉट, और महेश और उसकी एक फोटोग्राफ डाल देंगे, तो यहाँ पर शेयर हो गई, राइट। तो ये पूरा वॉल धीरे 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 करके ये पूरा वॉल भर जाएगा, और इट विल लुक अ फैबुलस, इट विल लुक अ फैबुलस। किसी भी बंदे को देखने को ये पसंद आएगा, किसी भी इंसान को ये देखने को भाएगा। अगर कोई अनअरेंज्ड फॉर्मेट में हमने कुछ भी रख दिया है तो किसी को मजा नहीं आता है। Is it okay? So this is what about the wall. Now let us switch to the another. Please do not worry, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो भी ठीक इसलिए है क्योंकि I am not just available for this session only, I am fully available for all the time after even this session। कुछ भी है तो हम उसको धीरे धीरे शेयर करेंगे, क्योंकि एक चीज हमको समझ में रखनी होती है कि अगर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी टू लर्न एट अ मोमेंट ओनली एट अ स्ट्रेच, दैट इज नेवर पॉसिबल। एक साथ किसी एक सेशन में हम सब नहीं सीख पाते हैं। ये हमको इंस्पायर करता है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। अगर हम इंस्पायर्ड है और जैसे हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, तो वो क्वेरीज जैसे जैसे आप पूछोगे उनके हम सॉल्यूशंस देंगे, तो इस तरह से पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो खत्म होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं आज आपको सब दिखा दूं, आप सब समझ जाओ और कल आप उसके मास्टर हो जाओ। ये कभी नहीं हो पाएगा, मेरे केस में भी नहीं हो पाएगा, किसी के केस में नहीं हो पाएगा। तो ग्रेजुअली ऑल टुगेदर, बिकॉज दिस इज अ जर्नी एंड वी हैव टू डू दैट जर्नी ऑल टुगेदर, ठीक है। ना कोई आगे ना कोई पीछे, हम साथ में जाएंगे। एनीवेज, सो नाउ इफ
आई जस्ट वुड लाइक टू मेक अनदर थिंग्स. सिर्फ मुझे यहाँ पर लेफ्ट अपर अप, या एनी क्वेश्चन शिरीन? Or shall we take the questions at the end of the session? What to do? Because he has raised, I don't know. Yes, we will cover the question end of this At session. the end of the Okay, fine, that's fine. Yeah. तो हमको क्या करना है, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे यहाँ पर पेडलेट का एक लेबल दिख रहा है, ठीक है, उस पे हमको क्लिक करना है. जैसे उस पे क्लिक करेंगे हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे आके देखेंगे कि मेरा फर्स्ट पेडलेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने क्रिएट किया हुआ है और 2 मिनट पहले मैंने क्रिएट किया हुआ है. तो सब जो भी हम पेडलेट्स बनाएंगे हमको यहाँ पर दिखेंगे. राइट नाउ लेट अस सी व्हाट इज कैनवास. Then canvas is a kind of a thing where you want to show something which are connected together, which has a connection, any kind of connections with each other. जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दे सकता हूँ, जैसे फैमिली का एग्जांपल दे सकता हूँ. मेरा फैमिली है, राइट, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन ये चीज सब में एलिजिबल है. जैसे कि आपको कोई रिलेशनशिप दिखाना हो किसी कॉन्सेप्ट का, तो वो रिलेशनशिप आप इजीली दिखा पाओगे, वो स्टेप बाय स्टेप करके आप दिखा पाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू इज, हम यहाँ पर एक और कैनवास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक और पैडलेट जिसका वो सेकंड ऑप्शन है. यहाँ पर हम टाइटल अभी चेंज नहीं करेंगे, उसको जैसा है उसको रखेंगे. ठीक है, ये सब चीज हमने देखी हुई है ऑलरेडी, यहाँ तक हमने देखा हुआ है, यहाँ से देखने का बाकी है. दैट विल बी कॉमन फॉर एवरीथिंग दैट विल सी इन द लास्ट. राइट, व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू क्लोज हियर. ये क्लोज हो गया. अब मैंने डबल क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पर एक बॉक्स, इसको बोलते हैं फादर. ठीक है, और कुछ अभी डालते नहीं है, सिर्फ फादर. यहाँ पर मैंने लिख दिया मदर. ठीक है, इतना हो गया. अब लिख दिया मैंने सन. Right now I want to give the relationship to this father, mother and son. ठीक है, तो कैसे दे पाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे मोर एक्शंस का एक बटन, उस पर हम क्लिक करेंगे और कनेक्ट टू पोस्ट करेंगे. जैसे कनेक्ट टू पोस्ट आप करते हो, ठीक है, इसको, तो यहाँ पर आपको सभी जो भी मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी आपने पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं, सभी में कनेक्ट बटन दिखेगा, लेकिन बारी बारी करके आप उसमें कनेक्शन दे पाओगे, रिलेशन दे पाओगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय सन. ठीक है, उसको कनेक्ट कर दिया. नहीं, चेंज करेंगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे, अब वापस कनेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसको रिलेशनशिप हमको सन को देना है. तो इसको कनेक्ट करेंगे और हम लिखेंगे माय सन. ठीक है, ये कनेक्ट हो गया. देखिए, फादर बोल रहे हैं ही इज माय सन. मदर को भी हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कनेक्ट अ पोस्ट और उसको कनेक्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कनेक्ट अ पोस्ट और जस्ट अ मिनट, जस्ट कनेक्ट अ पोस्ट, यस, जस्ट टू कनेक्ट अ पोस्ट. अगर इसमें से कनेक्शन निकाल देंगे, जस्ट तो क्या होगा, यहाँ पर माय सन जैसे हमने कनेक्ट कर दिया. तो फादर भी बोल रहे हैं ये मेरा सन है, मदर भी बोल रहे हैं ये मेरा सन है. ठीक है, अब सन क्या बोल रहा है कि मेरा भी कनेक्शन है किसी ना किसी से. तो किस तरह से कनेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे, तो और एक पोस्ट डाल देते हैं, माय यंगर ब्रदर. ठीक है, ऐसा डाल दिया. अब इसको हमको कनेक्ट करना है. ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए, यहाँ से कनेक्ट टू अ पोस्ट हम लिखेंगे माय क्यूट लविंग ब्रदर. ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्ट हो गया. अब ये पूरा जो भी आपने यहाँ पर कैनवास बनाया हुआ है, उसको आप कहीं भी मूव करोगे, ऑटोमेटिकली ये जो कनेक्शंस है वो अपने हिसाब से सेट होते जाएंगे, अपने हिसाब से सेट हो. किसी भी डिजाइन में आप उसको सेट कर सकते हो. ये तो सिर्फ एक फैमिली का एग्जांपल था, लेकिन बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं. जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड के. तो उस कंपाउंड को रिएक्शंस
के आधार पे उसको कनेक्ट करके दिखाना होता है, तो ये आसानी से हम दिखा पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना कैनवास। नाउ लेट अस मूव बैक टू द पैडलेट। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस वी विल टेक इट इन द एंड, राइट? नाउ द थर्ड थिंग, दिस इज स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो स्ट्रीम में क्या होगा कि पूरा एक बीच में पूरा एक स्ट्रीम बनेगा, जो कि बारी बारी करके एक पोस्ट उसमें डालते जाएंगे। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा स्ट्रीम हो गया, माय रिसर्च पेपर्स। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। Now I will write something about my research paper and that is on GIS and GPS। ऐसा करके हमने उसको रख दिया। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं और एक क्रिएट करना चाहूंगा। ठीक है, तो जितने भी आप क्रिएट करोगे वो सब इसके नीचे 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 आते जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अपलोड द एप्रोप्रिएट थिंग्स फ्रॉम the options given। इतने options है, मीटिंग आपकी कवाली, मुझे याद आया मत मीटिंग। Karim sir, yeah, I think can you mute yourself? thank you very much। और करीम भैया, बहुत अच्छी क्यूट आवाज थी आपके बच्चे की, वेरी क्यूट आवाज थी। अच्छा हुआ ना हमको सुनने मिली। देखो काफी काफी बार ऐसा होता है कि गलती से हम अनम्यूट हो जाते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें होती है वो सब में शेयर हो जाती है। तो अगेन ये भी अपना खुद का एक पैडलेट हो गया है ना। सो दैट इज अ काइंड ऑफ आवर ओन पैडलेट। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी पोस्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं उनमें कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता ही। देखिए मैं अभी कोई स्पेसिफिक चीज पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग चलता होता है। कोई फ्रूट्स के बारे में सोचता है, कोई प्लेसेस के बारे में सोचता है, कोई केमिस्ट्री के बारे में सोचता है, या फिर कोई फिजिक्स के बारे में सोचता है। तो सबकी सोच डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर दे दूं तो होगा ये कि आप उस पर स्टक हो जाओगे। ये मैं नहीं चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि ये किस किस चीज में सेट हो पाएगा, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा और आप क्रिएट करोगे तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया माय रिसर्च पेपर 1। दिस आई जस्ट वुड लाइक टू एडिट दिस पोस्ट। तो मैं क्या करूंगा, माय रिसर्च पेपर 1। अब मैं दूसरा डाल रहा हूं, माय रिसर्च पेपर ऑन कॉन्फ्रेंस, दैट इज 2। ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, माय रिसर्च पेपर 2, और ये होगा रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब ये भी हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड कर देंगे। क्या अपलोड कर देंगे, एडिट पोस्ट करके यहाँ से हम उसको फाइल अपलोड कर देंगे, और जो मेरा रिसर्च पेपर है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगा। देखिए अभी हम ट्राई करें इससे, तो मुझे कुछ ढूंढना होगा। जस्ट नीड 1 मिनट टू गो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रिसर्च पेपर ऑन जर्नल। देखिए मेरा एक रिसर्च पेपर है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ये रिसर्च पेपर यहाँ पर ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि वो जो मेरा रिसर्च पेपर है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो देखिए मेरा रिसर्च पेपर ऑन कॉन्फ्रेंस 2 रिमोट सेंसिंग, और उसका एक स्नैप यहाँ पर आ गया। सिमिलरली इस पोस्ट में भी हम उसको एडिट करके जो भी मतलब कंटेंट के बारे में यहाँ पर हम ये पोस्ट डाल रहे हैं उसमें हम उसको फोटोग्राफ या फिर कुछ भी हम उसमें एंटर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट जितने जितने आप कर पाओ, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा न्यू के लिए, ये न्यू आ जाएगा। पेपर 3, आई एम नॉट राइटिंग मोर बिकॉज वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ टाइम, राइट? पेपर 3 ऑन इंटरनेशनल जर्नल, राइट? हो गया। तो जितने पोस्ट डालोगे वो एक के नीचे एक आता जाएगा। उसको आप स्क्रॉल करके ये पूरा जो हमारा पैडलेट का सेशन 3 है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पैडलेट सेशन 3, उसको हम अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे, राइट? एंड देन वी कैन शेयर विथ अवर फ्रेंड्स, राइट? तो हम यहाँ पर वापस चले जाते हैं, मेक पैडलेट में चले जाते हैं, और हमने स्ट्रीम देख लिया। जैसे स्ट्रीम है वैसे ही ग्रिड है।
आप देखना अपने हिसाब से, यहाँ पर एक के नीचे एक आता है, यहाँ पर आप उसको उस कंटेंट को क्या कर पाते हो, रोज में आप सेट कर पाते हो। ठीक है, उसको हम क्या करोगे, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो उसमें सेट कर पाओगे। और ये सेम चीज थोड़ी उसको ट्विस्ट करके यहाँ पर दी गई है इस सेक्शन में। इस सेक्शन का नाम है शेल्फ। तो शेल्फ में क्या होता है ना कि शेल्फ में जो भी आप टॉपिक डिसाइड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टॉपिक डिसाइड किया है, नया फिर फर्स्ट कॉलम, तो वो सब कॉलम में चले जाएंगे कि भाई what are the reactions of vaccine, राइट। तो ये हो गया सेव, इसको हम सेव कर देंगे। और एक कॉलम, जितने भी मैं कॉलम ऐड करूंगा, एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के पास चौथा, तो मतलब एक एक करके कॉलम्स आपके ऐड होते जाएंगे। देखिए, what are the side effects of vaccine, ये तीसरा हो गया, राइट। इसको सेव कर लिया। यहाँ पर एक और कॉलम हमने, लास्ट कॉलम हम ऐड कर देते हैं, who already have taken the vaccine, इससे हो गया। अब देखिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं हम उस पे, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पर हम जैसे प्लस का साइन हमको दिख रहा है, उस प्लस के साइन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम अब नाउ वी कैन स्टार्ट शेयरिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू द गिवन things, that is what are the reactions of the vaccine. तो good यहाँ पर लिखा, no heavy reactions, right। यहाँ पर एक और पोस्ट डाल देते हैं, what are the side effect, need to think if agent, right। देखिएगा, above 45 very low side negative side effects, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर और एक मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जितने जितने ऐड हो पाएंगे, तो ये जितने टॉपिक से हम कॉलम में उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जितने कॉलम क्रिएट होंगे और उसको हम बारी बारी करके धीरे धीरे करके उसमें हम ऐड करते जाएंगे, या फिर जो भी कमेंट दे रहा है या जो भी इस पेडलेट को एक्सेस कर रहा है, वो अपना जो व्यू होगा वो उसमें रखता जाएगा और ये पेडलेट पूरा डिजाइन होता जाएगा। और जिससे कि जितने भी लोग पेडलेट से, इस पेडलेट से, इस वॉल से जुड़े हुए हैं, वो सब देख पाएंगे कि भाई क्या रिएक्शंस है, क्या साइड इफेक्ट है, किन किन लोगों ने उसको ले लिया है, और हम समझ पाएंगे या फिर जजमेंट ले पाएंगे किसने नहीं लिया। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ एक टॉपिक का, वैसे बहुत सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी हमने पेडलेट क्रिएट किए, एक एक करके यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई एक पेडलेट मुझे डिलीट भी करना है, जैसे ये फैंसी पेडलेट हमने बनाया था, उसको मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसको डिलीट पेडलेट पे क्लिक करूंगा। जैसे डिलीट पेडलेट पे क्लिक करूंगा, ऐसा एक नंबर आएगा, वो हमको टाइप करना होता है, बिकॉज it is giving you the step whether before doing this before performing this operations, are you sure you want to delete this padlet। अगर आप श्योर नहीं हो तो इसलिए वो आपको एक ब्रेक देता है कि आप तब तक नंबर लिखो, ये मैं 7150 लिखूं तो मुझे 2 बार सोचने का मौका मिले, इसलिए वो आपको एक स्टेप में आगे लेके जाता है। फिर अगर मैंने ये लिख दिया नंबर और यहाँ से डिलीट दबा दिया, तो वो पेडलेट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नाउ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, देखिए उसको बोलते हैं बैक चैनल। ये पूरा चैटिंग चैनल है, यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं इजीली। जैसा हम चैट करते हैं वैसे ही यहाँ पर चैटिंग हो सकती है। आप देखेंगे तो ये सब ऑप्शंस जो पहले के हैं वो कॉमन आए, वो क्या आएंगे, कॉमन। एक नया ऑप्शन है यहाँ पर, ये है रिएक्शंस। क्या है, रिएक्शंस। कभी ऐसा भी होता है ना कि बैड लैंग्वेज का यूज होता है, बैड वर्ड्स का यूज होता है चैटिंग में, सबके दिमाग में तो हम नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो कोई अगर है तो करके ऐसा हो सकता है कि वो अगर बैड वर्ड्स या फिर कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वो क्या ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, स्माइलीज में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको ऑटोमेटिकली स्माइली में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है पूरा चैटिंग के लिए। देखते हैं यहाँ पर, राइट। लेट्स डिस्कस गुड मैनर्स, राइट। उसको हमने पोस्ट कर दिया, तो ये पोस्ट हो गया। ठीक है, ये मेरी एक चैनल होगी। अगर कोई और मेरे इस चैटिंग चैनल पे आना चाहता है तो वो क्या कर सकता है कि वो अपनी पोस्ट किस तरह से
पोस्ट करेगा तो उसकी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, राइट। पीपल लेट्स हैंग आउट, राइट, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, यहाँ पर पोस्ट कर दिया, वेरी सिंपल। लेकिन ये जो पोस्ट हो रही है वो पूरे मैसेजेस है, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं ना वैसे ही मैसेजेस है, लेकिन इसमें आप कुछ अपना ऐड करना चाहो तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, कुछ भी आप उसमें ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बैक चैनल, उसमें आप चैटिंग कर पाओगे। फटाफट मैं ले लेता हूं क्योंकि इट इज ऑलरेडी 8:46। ये मैप है, तो मैप क्यों यूज करते हैं? कोई ऐसा बंदा है कि जो वर्ल्ड टूर कर रहा है, 2-3 महीने में कहीं निकल जाता है इंटरनेशनल टूर पे या फिर नेशनल टूर पे, कोई उसको घूमने का बहुत शौक है, तो वो अपना ऐसा भी पैडलेट डिजाइन कर सकता है। ओके, द अमेजिंग वी आर मेकिंग योर पैडलेट, गो बैक जस्ट अ मिनट। कभी ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है ना ऑनलाइन, तो आपको इस तरह से एरर भी आपको कभी दिखने को मिल सकती है, लेकिन वी डू नॉट नीड टू वरी, राइट। व्हाट वी डू अगेन, उसको हम क्या करेंगे, पैडलेट डॉट पे जाएंगे, होम पे आ जाएंगे, राइट। एक दो पैडलेट है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि अगर स्पेस का कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकल जाए और आसानी से हम कुछ कर पाए, ठीक है। अगेन वी ट्राई टू मेक दिस थिंग्स, सिलेक्ट पैडलेट, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी वॉल नहीं मिलेगा, पूरा मैप मिलेगा। क्या मिलेगा? मैप मिलेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में एक बहन थी, वो बोल रही थी मैं भी सर राजकोट से हूँ, शायद यहाँ पर उसने स्टडी किया हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, और लेट अस स्टार्ट मेकिंग दिस पैटर्न, स्टार्ट पोस्टिंग। व्हाट आई नीड टू डू इज, फॉर एग्जांपल परहैप्स इफ आई एम जूमिंग दिस, देखिए राजकोट आ गया यहाँ पर, तो मैंने राजकोट में बहुत अंदर नहीं जाना है, आई जस्ट वांट टू शो यू द राजकोट, ठीक है। तो यहीं से काफी है, मैं बता सकता हूँ। तो व्हाट आई नीड टू, यहाँ से मुझे क्या करना होगा, देखिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू ऐड दिस, राइट। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा मुझे सर्च करना होगा, जैसे मैं लिखूंगा राजकोट गुजरात इंडिया, तो ये आ जाएगा राजकोट गुजरात इंडिया, देखिए है ना, राजकोट गुजरात। अब थोड़े बहुत स्नैप्स लिए हुए हैं राजकोट के, यहाँ पर डाल देते हैं तो वो हो जाएंगे अपने मेमोरीज, सबके साथ मैंने शेयर किए। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस राजकोट को मैंने जो विजिट किया है वहां से मैं कहाँ गया था, वहां से उसके पास में पोरबंदर पड़ता है या फिर कुछ ऐसा लोकेशन है वहां पर मैं गया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक डिजाइन। अब मैं करूंगा उसको यहाँ से पोरबंदर पे क्लिक, राइट। तो वन मोर, व्हाट आई नीड टू, अगर यहाँ लिखना नहीं है तो आप सिंपल इसको ड्रैग करो, यहाँ से उसको ड्रैग करके आप लेके जाओ पोरबंदर पे, यहाँ पर आप स्टक कर लो, आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसके आसपास से। हमको चाहिए पोरबंदर, तो ये हो गया पोरबंदर। आप फोटो डाल दो, किसी का डालना हो तो, राइट, किसी फाइल में से सिलेक्ट करनी हो तो हम फोटो डाल देंगे उसमें से, या फिर कुछ भी ऐसा हो तो उसको एडिट पोस्ट, यहाँ से जाएंगे अपलोड, अपलोड में से ये हाथ में क्लिक कर दूंगा, ये एक फोटोग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट की गई है, तो इस तरह से दिखेगी। तो इतनी मैंने अपने क्या बताया आपने कि इतनी सारी जगह मैंने देखी हुई है। अब मैंने इंटरनेशनल टूर किया हुआ है, मैं कहीं यहाँ पर भी जा रहा हूँ, ठीक है। हमको स्मॉल करते हैं मैप को, राइट। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जाता हूँ, कैंसास में जा रहा हूँ तो उसको कैंसास को जूम करेंगे, यहाँ किसी एक जगह पे मैं जाके आया तो उसको भी सिमिलरली उस हिसाब से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया पूरा मैप। अब मैप में जहां जहां आपने जो भी पोस्ट डाली हुई है, अपना जो भी रिव्यूज या फिर आपने जो भी मेमोरीज डाली हुई है, उसको अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो, दे कैन सी, दे कैन कमेंट एंड दे कैन रिव्यू योर पोस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आएगा टाइमलाइन। जैसे मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि मैंने अपना एकेडमिक करियर 2004 से चालू किया था, तो 2004 से सबसे पहले मैंने क्या किया, एज अ टीचर काम किया, फिर बाद में पहले मैंने ट्यूटर काम किया, फिर मैं टीचर बना, टीचर के बाद मैं असिस्टेंट लेक्चरर बना, लेक्चरर के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, उसके बाद मैंने एसोसिएट प्रोफेसर में बना। अभी मेरा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट चालू है और विद इन 3-4 years आई एम गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, राइट। तो ये मेरा पूरा एकेडमिक टेन्योर है, जर्नी है, उसको मुझे दिखाना है अपनी टाइमलाइन में। तो किस तरह से दिखा पाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, मेक अ पैडलेट, दिस इज द लास्ट पैडलेट वी आर गोइंग टू सी, राइट। बट देखिए हाँ ऐसा होगा,
पैडलेट लिमिट रिच, आपने पूरा उसको निचोड़ लिया, जितने भी ऑप्शंस थे सब दिखा दिए। जैसे कि आप एक बार में समझ जाने वाला, जैसा पूछ रहे हो इंग्लिश में, मुझे तो बहुत ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, लेकिन somehow they would like to ask us, तो what we will do, हमारे जो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए पैडलेट हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। 5554 डिलीट, ये हो गया डिलीट। जो पहला था उसको भी हम डिलीट कर देंगे। 9452 डिलीट, ये दो हो गए। अब वन प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं लास्ट, दिस इज टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में जाके what we will do, they will show us the line with the different time slots, and in that time slots we will show our whole journey। देखिए यहाँ पर ये पूरा क्या आ गया, एक रूलर जैसा हमको दिख रहा है, ठीक है, ये सभी चीज है। नेक्स्ट, स्टार्ट पोस्टिंग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्लस का साइन दबाया, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखता हूं started career as a tutor, right? Started career as a tutor, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ, switch as a switch as a teacher, ये हो गया। तो आप बारी बारी करके यहाँ पर साल भी डाल सकते हो, जैसे कि 2005, इसमें आपको एडिट करके जैसे कि 2004, राइट। जैसा जैसा आप ऐड करते जाओगे ये पूरा यहाँ पर टाइमलाइन डिजाइन होता जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पास अगर कमेंट चाहिए या फिर कांग्रेचुलेशंस चाहिए, ग्रीटिंग्स चाहिए, तो ठीक है हम शेयर करेंगे, लेकिन ये अपने मौज के लिए भी कभी हम बना सकते हैं और उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, नॉट टू गेट द रिव्यू, जस्ट टू शो पीपल दैट हाउ आई हैव रीच्ड एट दिस लेवल, राइट। इज इट ओके? आई होप इतना आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, इस पैडलेट को जो मैंने बनाया था शाइनी पैडलेट, मैं क्या करूंगा, इस पैडलेट को मुझे शेयर करना है। तो यहाँ से मैं शेयर करूंगा, देखिए यहाँ पर एक शेयर का आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, शेयर। किसके साथ शेयर करना है और कैसे करना है ना। तो अगर आपके पास किसी का आईडी है, जो कि कौन सा आईडी होगा जो हम बना रहे थे उसमें, ये वाला देखो यहाँ पर, इसको जस्ट रीमेक करते हैं। तो रीमेक में जाके यहाँ पर हमारा जो आईडी था, जस्ट अ मिनट, मॉडिफाई, राइट। ये जो है ना वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हमने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर या फिर टेक्स्ट दिया हो वही चलेगा, माई ओन लिंक, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये आईडी आपके पास होना चाहिए आपके दोस्त का, तब जाके हम इसको शेयर कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से हम शेयर करेंगे किस तरह से, इनवाइट मेंबर्स को ऐड मेंबर करेंगे। ऐड मेंबर किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 3 ऑप्शन, नेम, यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस। तो सिंपल नेम लिखेंगे तो एनोनिमसली किसी भी काम को मिलेगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर सोनल, ठीक है। तो सोनल लिखेंगे तो सोनाली, सोनल, सोनाली, सोनल, सोनल, बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसी के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई अननोन हो तो क्यों शेयर करें। हमारा अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ हमको शेयर करना है, तो उसको यहाँ से सर्च करेंगे। और अभी तक हम चलो एक सोनल के साथ शेयर कर देते हैं, कोई है कुलश्रेष्ठा करके, इसको यहाँ से हमको राइट देना है। इट्स अ राइट, मतलब वो सिर्फ उसमें उसको रीड कर सके, उसमें अपना रिव्यू डाल सके, उसको एडिट कर सके, या उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर सके, किसी भी के साथ शेयर कर सके, या फिर उसको रिमूव कर सके। 4 अलग अलग लेवल में राइट्स दिए गए हैं। अगर किसी को सिर्फ दिखाना है देन यू गो फॉर रीड। अगर किसी को मतलब उसको उसके रिव्यूज हमको चाहिए, राइट, देन कैन राइट। और अगर किसी को उसमें एडिट करने की परमिशन देनी है देन वी कैन गो फॉर द एडिट। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं, उसको हम राइट के ऑर्डर देंगे, नहीं, कैन रीड ओनली, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, और कुछ कर पाएंगे नहीं। इसको हम सेव कर दिया, तो ये मेरा जो पैडलेट है वो ईमेल के फॉर्म में भी उसके अकाउंट में जाएगा, जो भी उसका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा वहां पर जाएगा। और पैडलेट के डेस्कटॉप पे भी उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि स्तवन करके कोई है, उसने मेरे साथ ये पैडलेट शेयर किया हुआ
ठीक है, इज इट ओके? आई थिंक देखिए इनवाइटेड मेंबर कितने हैं यहाँ पर, राइट? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेयर कर सकते हैं हम, लिंक के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी शेयर कर सकते हैं, उसको हमारे ब्लॉग में रखना हो तो वो एम्बेडेड स्क्रिप्ट का भी कोड हमको देते हैं, ईमेल के थ्रू किसी को भेजना हो इनविटेशन तो भी भेज सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल क्लासरूम में भी हम उसको डाल सकते हैं। उसको अगर एक्सपोर्ट करना है, जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो हमको सेव करके रखना है, तो एज अ इमेज, पीडीएफ, सीएसवी या फिर एक्सेल शीट, या फिर उसको डायरेक्ट प्रिंटर में प्रिंट देके भी उसको ये अच्छी तरह से डिजाइन हुआ हुआ कलरफुल पैडलेट हम प्रिंट आउट में ले सकते हैं। चलो मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है। दिस इज फेज 1। मुझे लगता है कि फेज 2 में वापस हम मिलेंगे और इंडिविजुअल मिलेंगे, जिसको जिसको जो भी क्वेरी हो तब हम सोल्व कर पाएंगे। अभी तक हम क्वेश्चंस क्विकली ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इज इट फाइन सोनल? ठीक है ना? There is no question so far. Participate, if you have any question, please write it in the chat box. There is no question, sir. I think everything is clear for everybody. No, that's not the possibility. Because there is no question. होता है, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो पूरा समझ में आ गया है या फिर पूरा ऊपर से गया हुआ है। एनीवे, There is one question. okay, Is it available in app version? Yes, it is available in the app version. Yes, yes, it is available. You for even Android, for Android and for iOS too, दोनों में है। से ऑलमोस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर। ऐप में जो आप यूज करोगे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑप्शन सभी कॉमन रहेंगे। Let's wait for 1 or 2 minutes, then we can continue our. Yes. See people, my dear brothers and sisters, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा पोर्टल है, पेडलेट है ना, कोई एक चीज नहीं है, पूरा पोर्टल है, उसमें 8 अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो हमने एट अ स्ट्रेच देख लिए हैं, इसलिए ये तो बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि हमको रेफरेंस मिल गया। लेकिन अब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि आई नो थरोली, ठीक है? वो तब जाके पॉसिबल होगा कि जो आज आपने सीखा है या फिर आपने जाना है उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने हिसाब से। यू ट्राई टू मेक योर ओन पेडलेट्स, राइट? एंड देन डेफिनेटली 100% कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी आपको आएगी, और वो हम चाहते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। या There is one more question. Can you mix 2 pedlets? Yes, I mean, see, you can link 2 pedlets, but you cannot mix 2 pedlets, because mixing and linking both are different things, right? You can link 2 pedlets, but you cannot mix 2 pedlets. Yes, perfectly all right. It's new for even so many people. Yes, this is actually new and very creative way. मोस्ट क्रिएटिव, क्योंकि देखिए मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से, या फिर मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, 1000 जितने मैंने वर्कशॉप ले लिए, बट आई डोंट हैव अ क्रिएटिविटी, then there is no use of that। मतलब जो क्रिएटिव होगा ना वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा बनेगा कि हम देख के सोचेंगे ओ यार क्या बात है, हमने क्या कर दिया, राइट? ओके, सो एनीथिंग एल्स? I don't think so. I think if everything is clear, then okay, what are the new features other than WhatsApp? I didn't get your question, Preena. What exactly you mean? Because it has no connection with WhatsApp. Acha, okay, got it. No, it is totally different. WhatsApp is a social media chatting application, whereas this is a group activity, right? So we cannot compare these two things, है ना? हम कंपेयर नहीं कर पाए क्योंकि एक हेलीकॉप्टर है और एक बाइक है। This is kind of a things. If there is no more question, then we can switch to email options, right? Yes, sir. Yeah, if moderator allows me. So we can
You can write it in the chat box. Even you have the later you have question related to the peddler. So Yes, definitely, of course. Yes. Yeah. Okay, then let me switch to email options. देखिए बहुत quickly हम उसको ले रहे हैं, है ना? कुछ भी question हो तो you can write. Yes. Now we know very well how to compose the mail, right? Because we are usually writing mails. यहाँ से हम Gmail का example हम लेते हैं, यहाँ पर हम compose करते हैं. तो जैसे हम कंपोज पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि कंपोज पे क्लिक करते ही आपको एक कंपोज बॉक्स मिलेगा, उसको इनबॉक्स आई मीन राइटिंग बॉक्स कहते हैं. वहां पर आपको टू यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना? यहाँ से आप किसी को मेल करना चाहते हो तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू. जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेल टू माय फ्रेंड हितेंद्र दोंगा HM, ठीक है, हितेंद्र दोंगा @atmiyauniversity.in. तो अगर कोई एड्रेस सेव है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर सेव नहीं है तो फर्स्ट टाइम यू हैव टू राइट, देन इट विल शो यू एज अ सजेशंस दैट वी ऑलरेडी नो. देखिए ये हो गया. अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईमेल, राइट? ऐसे लिख दिया, क्योंकि अभी ये मेल हम सिर्फ एक इंसान को भेज रहे हैं और इसीलिए हम उसको एक ही इंसान को यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है. काफी बार ऐसा होता है कि हमको मल्टीपल लोगों को मेल सेंड करना होता है, तो मल्टीपल लोगों को हम जब मेल सेंड करते हैं तो होता क्या कि यहाँ पर भी अगर आप लिस्ट डाल दो, जैसे देखिए आपको मैं बताऊं एक चीज, ठीक है, जस्ट अ मिनट. मेरे पास यहाँ ईमेल एड्रेस बहुत सारे पड़े हुए हैं. यहाँ से मैं Ctrl+A करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ये मैंने पेस्ट कर दिए, सभी हो गए पेस्ट, राइट? तो ये एक तरीका है कि आपको जिन जिन को मेल करना होता है उन सब के नाम यहाँ पर आप उसके सब के ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दो और अपना मेल कंपोज कर लो. डियर सर, मैडम, जो भी आपका मेल है उस कंटेंट है, ठीक है, वो आप लिख दो. देन यू go through the content and then salutations and then ending of the mail, regards और खत्म, ठीक है? इतना होता है. तो जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं more than one person at a time, what we need to do, we have to remember if you will write 18 more, यहाँ पर 18 ईमेल एड्रेस हमको दिखने मिल रहे हैं इन दो के अलावा, तो 20 ईमेल एड्रेस हमने जो यहाँ पर डाले हुए हैं वो ईमेल एड्रेस सभी को किस तरह से दिखेंगे? अपने ईमेल एरिया में जाके सबको दिखेंगे. जब भी फॉरवर्ड होता है तब जैसे दिखता है ना वैसे दिखेंगे. बेटर वे इज दैट इफ वी रिमूव दिस ऑल ईमेल एड्रेस फ्रॉम हियर, जैसे कि इसको हम रिमूव कर दें, यहाँ से एक एड्रेस हम जिस जो पहले लिखा था वो लिखते हैं. देन वी हैव यहाँ पर दो ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस आर गिवन हियर. The first one is CC and the another one is BCC. Now what is CC? The full form of CC is carbon copy. कार्बन कॉपी में क्या होता है ना, एक पेज होता है, उसके नीचे कार्बन पेपर रखते हैं और उसके नीचे दूसरा पेपर रखते हैं और ऊपर जो भी हम कुछ लिखते हैं वो नीचे ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है. दैट इज कॉल्ड द कार्बन कॉपी. सिमिलरली हम एक इंसान को मेल कर रहे हैं तो वो मल्टीपल लोगों को भी जाना चाहिए, तो ये प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पर CC जैसे ऐड करेंगे, टू whom you want to send this mail, सबके ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए. तो जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे वो सब ईमेल एड्रेस सबको दिखेंगे कि मेरे अलावा भी ये मेल किस किस लोगों को गया हुआ है, वो सब देख पाएंगे, ठीक है? बिकॉज समटाइम्स इट इज लाइक कोई अनाउंसमेंट है तो वो सबको जाए तो सबको दिखे, तो क्या प्रॉब्लम है कि मेरे अलावा किस किस को मिला है? दैट इज फाइन. अगर कोई रह गया है तो वो कोई अपनी ओर से थर्ड पार्टी भी उसको इन्फॉर्म कर देवे, ये भी हो सकता है, राइट? दैट इज कॉल्ड द CC. ओके, नाउ व्हाट इज BCC? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसा कंटेंट है कि जो मेल आप किसी को भेजना चाहते हो, आप मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हो, लेकिन आप उसको पर्सनल कम्युनिकेशन फिल करवाना चाहते हो कि मैंने ये मेल सिर्फ आपको ही भेजा है और किसी को भेजा नहीं, ऐसा कुछ आप फील करवाना चाहते हो. और या फिर आपका इंटेंशन ऐसा है, मोटिव ऐसा है कि ये मेल किस किस को मैंने भेजा है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए उसके अलावा, कि मैंने और किस किस को भेजा है, देन एट दैट टाइम व्हाट आई नीड टू डू इज BCC में मुझे ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, देखिए यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ BCC में, उसको यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ स्तवन, मेरा ही एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, मेरा ही एड्रेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ.
ओके, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया और मैंने सेंड कर दिया। तो ये 2 लोगों को सेंड हुआ। देखिए यहाँ पर मुझे भी मिला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईमेल, ये मैं ओपन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बीसीसी में मुझे मेरा ही दिख रहा है। अगर मैं बीसीसी में अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये स्तवन में डाल रहा हूँ, स्तवन.patel अनदर मेल, और सीसी में हम बीसीसी में डालेंगे, जैसे कि और मेरा अकाउंट ओपन कर लूं यहाँ पर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन ऑलरेडी है, ओके चलो ठीक है, दिस इज ऑलरेडी लॉगिन, राइट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बीसीसी में स्तवन, ये लिखता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ठीक, और मैं स्तवन को भी मेल कर रहा हूँ, नो कंटेंट, और मैंने ये सेंड कर दी। देखिए बीसीसी में मैंने 2 लोगों को मेल सेंड किया, एक मुझे खुद किया और एक दूसरे अकाउंट को मैंने मेल सेंड किया। अब देखते हैं, यहाँ से निकल गया, इनबॉक्स में जाएंगे, मुझे मेरा अनदर मेल दिख रहा है, राइट, तो ये मेरे ही अकाउंट में है, लेकिन बीसीसी में सिर्फ मुझे मेरा अकाउंट ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेल होना चाहिए स्तवन पटेल अनदर मेल नो कंटेंट, सी, राइट। बीसीसी में किसको भेजा है वो यहाँ पर आपको दिखता नहीं है, आपको सिर्फ क्या दिखेगा कि किसकी ओर से मेल आया, फ्रॉम हुम आई हैव रिसीव्ड अ मेल, और मुझे मिला, किसी और को मिला वो एड्रेस यहाँ पर दिखेगा नहीं, सिर्फ मुझे मेरा ही एड्रेस दिख रहा है। So this is all about CC and BCC, right? Now what you need to do is you need to download Grammarly। देखिए Grammarly क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये Grammarly का वेबसाइट है। बहुत सारी ऐड आती है, जब भी आप YouTube देखते हो तो बहुत बार दिखाते हैं Grammarly 3-3, 4-4 मिनट का ऐड होता है। बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको क्या करना है, आपको गेट Grammarly पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट Grammarly पे क्लिक करते हो, वैसे ही वो आपको स्टेप्स में लेके जाएगा, आपको पूछेगा कि आपको कौन सा Grammarly चाहिए। देन आई हैव आस्क्ड फॉर द क्रोम प्लगइन। क्या है ये? क्रोम प्लगइन है। तो क्रोम में अगर एक बार हमने Grammarly प्लगइन ऐड कर दिया तो फिर आपको शांति हो जाएगी, या फिर आपने वर्ड के लिए, क्योंकि ज्यादातर हम राइटिंग कहां पर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, या फिर हम तो डायरेक्टली मेल में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना मेल लिख रहा हूँ, मैं कंपोज कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, मुझे ये ग्रीन कलर का बटन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडेड एज अ प्लग इन माई क्रोम ब्राउजर है। तो मैं लिख रहा हूँ हाउ is you, right? That is grammarly wrong. ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो how are you होता है ना, then I have write how is you। जैसे मैंने लिखा on the very moment, ये मुझे एरर दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर रखता हूँ, सीधा मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, राइट आंसर मिलता है। अगर वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं हो या स्पेलिंग वाइज भी करेक्ट नहीं हो, मुझे दिखता है, राइट। अगर मैंने कॉन्फ्रेंस का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, ऑटो करेक्ट। ये चीज वर्ड में होती है, लेकिन यहाँ पर हमको मैन्युअली करनी होती है। अगर एक बार आपने Grammarly को इंस्टॉल कर दिया, देन रिलैक्स, ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ आवर एवरी राइटिंग थिंग्स। देखिए यहाँ पर मैं राइट कर रहा था ना, कंपोज कर रहा था, अचानक से लाइट चली गई। अब वो डेस्कटॉप था, लैपटॉप तो था नहीं, या फिर लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, वो अचानक से बंद हो गया, तो मेरे मेल का क्या होगा? मैंने तो पूरा मेल लिखा था। Gmail is saving your mail at certain intervals in seconds, right? 10 या 15 सेकंड में आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो अपने हिसाब से सेव करता है। अगर वो बंद हो भी गया है तो वो ड्राफ्ट में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ड्राफ्ट में। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे थे ना अभी, देखिए टाइम कौन सा हुआ, नो हुआ है, राइट। तो ये ड्राफ्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे क्लिक करेंगे वो पूरा मेल आपको वापस जैसा आपने छोड़ा था वैसा आपको मिलेगा, राइट। अगर कोई मेल को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि ये पेडलेट का है, ठीक है, ये पेडलेट फॉक्स 7 यहाँ पर हमने आज बनाए, तो यहाँ पर मेल आ गया, कांग्रेचुलेशंस योर पेडलेट इज रेडी। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू ऐड लेबल। What I'll do, I'll manage labels। यहाँ पर मैंने create new label कर दिया, उसको नाम दे दिया Padlet। क्या नाम दे दिया? Padlet। उसमें अगर नेस्टिंग करना हो
अगर 8 पेडलेट को अलग अलग रखना हो, उसके मेल को अलग अलग रखना हो, तो ये नेस्टिंग भी हो सकता है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेस्टिंग की जरूरत है नहीं। नेस्टिंग मतलब फोल्डर में फोल्डर में फोल्डर, ठीक है, इस हिसाब से लेटर वाइज। तो क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर पेडलेट का लेबल हमको देखने को मिलेगा। सी इट इज पेडलेट, राइट। नाउ ये पेडलेट का जो मेल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से हम मोर सिलेक्ट करेंगे, राइट। और उसको हमको क्या करना है, कितने ऑप्शन है, मार्क एज रीड, अगर रीड कर लिया है, नहीं रीड किया और उसको रीड मार्क करना है वो कर सकते हो। अगर पढ़ लिया है, जैसे कि मैंने ये मेल ओपन कर लिया, देखिए पेडलेट वाला मेल मैंने ओपन कर लिया, अब ये रीड हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर तो रीड फॉर्मेट में दिखेगा ना। अगर उसको हमको अनरीड रखना है तो यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, मार्क एज अनरीड, तो वापस वो अनरीड फॉर्मेट में आ जाएगा। और उसको यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए, लेबल्ड करने के लिए मूव टू पेडलेट, तो वो किस में चला गया, पेडलेट में चला गया। तो इस तरह से आप आपके इनकमिंग सभी मेल्स को अरेंज कर पाओगे, क्या कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे। I got high blood pressure in 2013, right? Anyhow, nothing to worry. Why I'm sharing these things because तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड्स का एक फोल्डर बनाया था इन 2013, और रेगुलरली मैं क्या करता था, रेगुलरली मैं क्या करता था, देखिए यहाँ पर तारीख दी गई है 8/7/2013, 8:45 PM। ब्लड प्रेशर क्या था, नीचे का 90, ऊपर का 130। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मैनेज। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हर रोज कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिसकी आपको एक सर्टेन इंटरवल्स आपको जरूरत पड़ सकती है, तो तब अगर हर रोज मैनेज किया हुआ होता है ना, तो क्विकली आपको वो चीज सभी एक ही जगह से मिल सकती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द लेबल्स थ्रू द मेल। बहुत एक अच्छी चीज मैंने आपको बताई। यहाँ से आप चैटिंग तो कर ही पाते हो, वो तो आपको पता ही होगा कि आप चैटिंग कर पाते हो, यहाँ से आप किसी के दोस्त, किसी भी दोस्त के साथ जो भी आपके ग्रुप में इन्वॉल्व है, लाइव चैट कर पा रहे हो, अगर वो अभी लाइव है तो, नहीं तो वो मैसेजेस जाएंगे उसके मेल में, ऑफलाइन मैसेजेस जाएंगे, फिर वापस जब वो ऑनलाइन होता है तब हम रीड कर पाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, यू जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन लेट मी नो, विल डिस्कस ऑन दैट। And the third thing, I just would like to show you an application to you people, what is compression and how to convert the file format, right? For converting file format, we have Format Factory software. I will send a link to the moderator, and Sunita Ben को मैं आपको link दे दूंगा। ये freeware software है, you don't require a crack, right? तो आप जैसे इंस्टॉल करोगे वो लाइसेंस भी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। What you need to do is, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर और डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वीडियो में जाएंगे, आपके पास कोई वीडियो फाइल है, उसको आपको MKV, MP4 या फिर GIF में भी अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। वेब मूवी में कन्वर्ट करना हो, या फिर किसी भी AVI, WLG या MPG में आपको कन्वर्ट करना हो, या VOB में, तो वो सब हो सकता है। हाउ टू डू दैट, नाउ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ MP4। जैसे MP4 में सिलेक्ट करता हूँ, कोई ऐसी फाइल है जो वेब फाइल, राइट, आपके मोबाइल में अगर आप शूट करोगे तो वो MP4 में नहीं होगा, वो किसी डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। तो आपकी मोबाइल की जो भी वीडियो फाइल है यहाँ से ऐड कर दो, आप कंप्यूटर में कोई एक फाइल यहाँ पर ले लो, और जैसे ही कोई एक फाइल यहाँ पर आ जाती है, तो वीडियोस में कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे एक फाइल यहाँ पर आ गई, तो मुझे क्या करना होगा, उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा। दिस इज ऑलरेडी MP4 कन्वर्टेड इनटू MP4। फिर भी आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर एक फाइल ऐड हो गई, देन सिंपल ओके, ओके कर दिया, ये फाइल यहाँ पर आपको दिख रही है। अब वेटिंग, हमारी वेट हुई, यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, जैसे आप स्टार्ट करोगे, वो अगर MP4 नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आउटपुट फोल्डर आपको यहाँ पर दिख रहा है, आउटपुट फोल्डर, ये पाथ आप सेट कर सकते हो। अभी हमने पाथ कौन सा सेट किया हुआ है, दिस PC लोकल E एंड FF आउटपुट, ऐसा पाथ क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए FE ड्राइव में है ना, E ड्राइव में, तो हम उसको माई कंप्यूटर में जाएंगे, E ड्राइव में देखेंगे, ये हमको फोल्डर दिख रहा है FF आउटपुट, तो इसमें सभी फाइल अवेलेबल होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, फटाफट ये उसको कन्वर्ट कर देगा MP4 में, और जैसे ही वो MP4 में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे एक म्यूजिक टोन आपको मिलेगा,
और वो म्यूजिक टोन तो फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम ऐसा कुछ नंबर में है 163813। हम अगेन जाएंगे आउटपुट फोल्डर में, यहाँ से देखेंगे 1644 कैसा कुछ है, हाँ 163813 ऐसा कुछ फाइल था। तो ये हमको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। जो भी कन्वर्ट होती है फाइल, वो सब फाइल्स यहाँ पर आपको दिखने को मिलती है। अगर ऑडियो है तो ऑडियो में आपको MP3, WMA, MP4, FLAC, EC, एप, वेव या फिर DTS, SE3, बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें से जो भी आपके काम के ऑप्शंस हो, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो, सिर्फ सिलेक्ट MP3 जैसा सिलेक्ट किया, सीधा यहाँ से फाइल ऐड कर दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए, स्टार्ट प्रेस कर दीजिए, मैटर एंड्स। जैसे कि पिक्चर है तो पिक्चर में आपको JPG में कन्वर्ट करना है, PNG में करना है, जैसे चलो PNG में करना है तो ऐड फाइल करेंगे, किसी फोटोग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, कुछ कोई ना कोई फोटो तो होगा वहां पर, है ना। ये डेस्कटॉप, ये लोगो, उसको हम करेंगे ओपन, और अभी इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू PNG, राइट, है ना। तो इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट को भी, अगर देखिए आपके पास 2 PDF फाइल है और उसको आपको मर्ज करना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना, कभी कभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं तब जाके होता है। और वाई टू अपलोड अवर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन टू मर्ज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर PDF जॉइनर भी दिया हुआ है, 2 PDF को आप ज्वाइन कर सकते हो, 2 अलग अलग PDF को आप, एक ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए, ओके कर दीजिए और उसको यहाँ से स्टार्ट दे दीजिए, यस। तो ये हो जाएगा। ये फेल हो गया अभी क्योंकि वो दोनों फाइल फॉर्मेट डिफरेंट थे, लेकिन 2 PDF आप अगर मैच कर दोगे तो वो एक PDF में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो अगर PDF टू टेक्स्ट TXT, PIC, DOCX यानी कि वर्ड की फाइल में आप कन्वर्ट करोगे तो वो भी हो सकता है, एक्सेल में भी हो सकता है, सभी में हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो, ऑडियो, पिक्चर और डॉक्यूमेंट, पूरा जो भी हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, पूरे ऑप्शंस यहाँ पर हमको मिल गए। और ये टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज उसका नहीं है और बहुत इजी है, उसमें कुछ सीखने जैसा नहीं। आप अपने हिसाब से एक बार देख लिया तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। हाँ, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं लेकिन उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉपिंग, पूरा वीडियो उसमें से एक क्लिप आपको क्रॉप करके अलग करनी है, उसका वीडियो बनाना है, तो वो सब चीज यहाँ पर हो सकती है। आई थिंक बहुत सारी कंटेंट हो गई है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ योर अटेंटिवनेस, आई एम एंडिंग माई सेशन एट दिस पॉइंट। अगर कुछ गलती हो या फिर आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पाया हो तो क्षमा याचना करता हूँ आप सबसे। But I have tried my level best to give these 3 different things and in the given time of 1 hour and 10 minutes, right? Okay, from my side, Sonal. Sir, there is one more question. Yeah, please, How go to ahead. add email signature with photo? Excellent question. देखिए क्या करना है, जैसे कि ये मेल है मेरा, ठीक है, मैं कंपोज करता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर सिग्नेचर, है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने मिलती है। ये तो बाय डिफॉल्ट एक सिंबल भी आ जाएगा और मेरा इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। तो ये करने के लिए आपको जाना पड़ता है सेटिंग में। कहाँ जाना पड़ता है? सेटिंग में। तो सेटिंग्स आप देख, नहीं वो सेटिंग नहीं, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ से ये सी ऑल सेटिंग्स, सेटिंग में आप अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वहां पर आपको आपका सिग्नेचर, यहाँ पर जनरल में सेटिंग में जनरल में आपका ये सिग्नेचर यहाँ क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से लिख दीजिए माय सिग्नेचर डन, क्रिएट न्यू, अगर करना है तो भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, है ना, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हो, आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर हो तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जिस तरह से हम अपना सिग्नेचर ऐड करेंगे, जैसे ही अपना सिग्नेचर ऐड हो गया तो वो हर कंपोजिशन में एंड में बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। Anything else, Sonal? There is no question. Any question related to compressed video? Participant?
You can write it in the chat box. Yes. About email, Padlets, nothing. Anything you want. The name of that software is Format Factory. Format Factory. I'll send the link. You will send, yeah? Yeah, I'll send the link. I'll Okay, share it. that will share with the participants. Yes. लास्ट तो ऑप्शन है ना, वो यूटिलिटीज है, डीवीडी सीडी राइट करना हो या फिर उसको आईएसओ सीएसओ बनाना, उसके लिए ये थोड़ा टेक्निकल है, तो अपने काम का नहीं है, तो वी आर नॉट कवरिंग दैट थिंग, राइट। डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करना हो तो यहाँ पर कंप्रेस का ऑप्शन भी दिया गया है, आप डाल दो इधर, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड कर दो कोई फाइल, ओके कर दो और उसको स्टार्ट बटन दबा दो, तो वो अपने आप उसको कंप्रेस कर देगा। There is one question, sir. Yes. What is the main use or how it would be helpful for us if we make any Padlet? See, I think the use I already have described you at the initial part of my talk कि उसका use क्या है। देखिए नीलम, अगर आप 5 लड़कियां हो, ठीक है, 5 दोस्त हो, and every day आप में कोई ना कोई तो बातचीत होती रहती है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी बातचीत को आप व्हाट्सएप से या फिर इंस्टा से कर रहे हो, दैट इज अ सोशल मीडिया। नाउ इफ यू मेक अ Padlet and in that you are sharing something to your 4 different friends, तो आपकी फ्रेंड्स जो है वो भी Padlet देखेंगी, आपने क्या पोस्ट किया वो भी देखेंगी, उसके रिव्यू देंगे या उसको एडिट करेंगे, कुछ भी जो भी आप राइट्स उसको असाइन करते हो। दिस इज द मोर क्रिएटिव वे रादर टू यू नो to make a club of some specific activity, and that is a live club. You don't need to be with each other physically. आप अपने घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन ये सब कर सकते हो। Any question, participants? No problem. If they have any questions or if there is no question. No problem at all. If any question is arising, even after the completion of this workshop, any day, I am fully available for your queries, right? So nothing to worry. Yes, if you have any question, sir is there for us. He already offered us for that help, so we can ask it later. Okay, so if there is no question, that means it's time to say goodbye. So thank you, sir, for sharing your knowledge and time with us. We have learned lots of new things, especially Padlet. आपने बहुत आसानी से समझाया कि how we can take our online class, even online class, the creative way. Thank you so much, sir. And it will be definitely helpful for our future also. So thank you, sir. Thank you so much. Formality नहीं कर रहा हूँ, लेकिन I too have enjoyed sharing with you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और audience is very beautiful, very nice, very disciplined, and very attentive even. So I'm very happy to be with you people in through these sessions. Even if in the future, if you would like to arrange anything specifically on Padlet, on one thing for 1 hour, then I will be doing that happily, right? So thanks once again, Sonita Ben, Sonal, and all of you. Thank and you specifically so Pinali. much. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. And thank you all the participants for attending this webinar. And thank you to the CPC team for making this webinar happen. And we would like to request participants to fill up the evaluation form. So it will be helpful to conduct more program or new program to your needs. So thank you so much. And yeah, Ali Madad.